Hi, so welcome to DCA. Today we will be discussing, brief analysis, plan layout, and what should be the ideal approach for paper 2 of CAPF exam, right? We had already discussed about paper 1, which I again repeat that should not be neglected. Paper 1 is important. Your marks is directly proportional to the effort you put in paper 1, right? While paper 2 is subjective, right? So the difference between a good student score and an average student score is not too much. Bandwidth बहुत ज़्यादा नहीं होगा, right? Even an average candidate who has not prepared too much might be able to get 70, 80 or 82. But even if a good student, a serious student who has practiced, in an efficient manner, may be able to get around 120 or 130, right? That is subjective. In UPSC subjective, scoring 60% or 65% is a big deal. That means you are good enough, right? Knowledgeable enough, efficient enough within that domain of time. Okay. So in order to focus upon paper 2, one thing I would like to clear before starting the discussion, I'm not going to discuss how to write essay right now, right? I'm not going to discuss how to write thesis, okay? I'm not going to discuss what should be an ideal way of report making, okay? Because these are separate session, a vast session. Thesis कैसे लिखना चाहिए, what is the ideal, what is the model one, वो अलग session है. We'll be coming up with this kind of session one by one. आज का एजेंडा क्या है? What is we are going to discuss today, that what should be your ideal approach. That means when you get paper in your hand, what should be the order in which you should attempt the subjective part, right? Because along with the question paper, you have the space. Okay, this is the question, you have the space. Template is available on the UPSC portal, you can check it out. Okay, space होता है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप question number 1 को पहले attempt करें. It's not mandatory. Because if you remember, even in the board exam, you have front page पे होता है टीचर के लिए question number 1 पेज नंबर इतने में कितने मार्क्स दिए, question number 2 marks is this one, so they have to fill the template. So it doesn't matter how you are exactly attempting the question in order or not, right? ये जरूरी नहीं है. तो this is again based upon my UPSC experiences कि आपको ideally पेपर किस order में attempt करना चाहिए. I am assuming right now that majority of the candidates who are attending the session are average aspirants. It's not you are not an UPSC pro. ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एवरेज हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि शायद UPSC पेपर 2 में कुछ कम आए. That is basically due to low in confidence. ऐसा नहीं है कि you don't have knowledge. You have sufficient knowledge, and in fact पेपर 2 में knowledge की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. It's all about presentation, documentation, right? You can say that जैसे सेक्रेटेरिएट वगैरह में कम्युनिकेशन होता है, ड्राफ्टिंग होती है, यही चीज करना है आपको. ऑडिट की रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट सबमिट करते हो. इट्स मोर और लेस थिंग्स लाइक दैट, राइट? सब कुछ मतलब इट्स यू कैन से दैट दिस ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. व्हेन यू डू एमबीए यू हैव वन एलिमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन. सो सब कुछ इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन ही है एक तरह से. ओके, सो अगर आप इसलिए देख रहे हो कि ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, आर्गुमेंट्स टू एंड अगेंस्ट या फॉर में कैसे लिखना है, तो दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. अदरवाइज आप पूरा देख लोगे, बाद में मुझे गाली दोगे. So that is not, that's why I am already saying this. Okay, so coming to the point, what we are going to discuss today, right? You are pretty aware that CAPF paper 2 is around 200 marks, right? For 3 hours, that means 180 minutes. So indirectly you can say that 180 minutes, 200 marks. So 1 marks a minute indirectly. आप इसको 200 ले लो, लगभग on the average है, ठीक है? दूसरी चीज, What I feel that कि majority of the candidates, ज़्यादातर बच्चे जो ये CAPF पेपर 2 से डरते हैं या उनको लगता है कि उनका स्कोर उसमें अच्छा नहीं है, जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट दिया हो, और जिनको लगता है कि पता नहीं मैं कैसे लिखूंगा, आएगा तो क्या करूंगा. तो प्रॉब्लम जो बेसिकली है वो 5 तरह के. टाइम मैनेजमेंट, कि उनको लगता है कि इतना मैं लिख नहीं पाऊंगा, टाइम कम पड़ जाएगा. दिस इज व्हाट यू फील, राइट? सेकंड, लैक ऑफ थॉट. जैसे you get some topic, right? In fact, in CAPF paper, the topic of the essay or the report is not so tough. It's the general. As last time I saw that one of the topic was role of army, right, in nation building. It's a general topic, right? आप ऐसे कोई topic एजुकेशन का होगा, कोई women empowerment का होगा, something like that. It's more or less
generalized thing, it's not factual, it's not like that it is in the trend, ऐसा कुछ नहीं होगा. They are not going to ask you to write pros and cons of CA, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये सब टॉपिक इसमें नहीं आता. While in civil services the question can be, you can say that proverb, sayings, तो उसमें ना थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है. तो इट्स कंप्लीटली डिफिकल्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बिकॉज द रोल इज आल्सो डिफरेंट है. ओके, सो कोई टॉपिक आया तो उसके बारे में आप उसके मल्टी डायमेंशनल थॉट्स नहीं है आपके. यू आर जस्ट राइटिंग वन पॉइंट. ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, मैं आपको बोलूं रोल ऑफ आर्मी नेशन बिल्डिंग, तो आप क्या करोगे, जनरली लिखते जाओगे आर्मी इज गुड फॉर नेशन, इट्स नेसेसरी फॉर नेशन, और 50 फुल स्टॉप लगा दोगे, कॉमा लगा दोगे. व्हाट 3 पेज का होता है, 1 पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड. तो आप क्या करते हो कि अब स्टार्टिंग किया और लास्ट तक भरना है. द ओनली एजेंडा ऑफ योर लाइफ इन सीएपीएफ इज कि आपने लास्ट तक भरना है. इट्स नॉट मैंडेटरी. यूपीएससी डज नॉट से दिस. दे राइट दैट दिस इज द मिनिमम वर्ड. लेट्स सपोज कि 300 वर्ड्स में लिखना है. It's not mandatory you have to count 300. It can be 240 also. Doesn't matter. The presentation should be good, right? Content should be good. Content should be multi-dimensional. And if you are able to add some current context with example, bullet points, that is good, right? तो मेरा पहला सजेशन यही है कि आप 300 वर्ड लिखने की कोशिश ना करें, राइट? Assuming average aspirant, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप 300 लिखें, 310 लिखें, doesn't matter, right? But try to write 240 to 260, okay? Because आपको एक ऐसे नहीं लिखना, 4 ऐसे लिखना है, right? And it will take time. It will take around your 70 to 80 minutes, okay? Average students के लिए. तो आप अपना ना समय बचाओ, थोड़ा सा वर्ड कम लिखो, right? वर्ड के बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं होते. Even if you write 300 or 260 word, I don't think there is any difference in the marks if your content is good enough, okay? Because they are not going to count your words actually. Examiner is not going to count. It should be ideally this one, right? एक अपर कैप लगाया जाता है कि आपको इसी बैंडविड्थ में लिखना है, वरना आपको कॉलेज का एग्जाम याद आ जाएगा और आप पूरा पेज भरने लगोगे. सरकारी एग्जाम है, पूरे पेज भर दो. ऐसा नहीं करना आपने को, नहीं तो आप बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट, लो कॉन्फिडेंस. दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग, जो अभी कोचिंग के लिए रहे होंगे या खुद से कोशिश कर रहे होंगे, या मैं आपको कोई जनरल टॉपिक दे दूं ना, जैसे आजकल चल रहा है द एपिडेमिक इश्यूज इन इंडिया, पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, लेट्स सपोज, आपके दिमाग में इतनी चीजें आ जाएंगी कि आप ब्लैंक हो जाओगे. अच्छा क्या लिखो आप जैसे मैंने टॉपिक दिया पब्लिक हेल्थ, अब आप उसमें इट्स अ जनरल थिंग, आम आदमी क्या करेगा, उसमें कम से कम 25 बार कोरोना कोरोना लिख देगा. बट द एसे वाज नॉट ऑन कोरोना, राइट? It was not on COVID-19. It was not all about novel coronavirus, right? It was not about lockdown. क्योंकि आपने करंटली देखा है तो आपने पूरा भर दिया. ऐसा नहीं करना आपने को. टॉपिक पब्लिक हेल्थ है, अपने को बात पब्लिक हेल्थ के मल्टीपल डायमेंशन की करनी है, एपिडेमिक से करनी है, पैंडेमिक से करनी है, हिस्ट्री में क्या हुआ. आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि रीसेंट आउटब्रेक ऑफ कोरोना, राइट? बट उस पे बहुत एम्फसाइज नहीं करना है. ऐसे शुड बी फोकस्ड. ये तो ये जो लो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके दिमाग में आता जाएगा ना, आप लिखते जाओगे. मतलब हाँ सोचा, चलो लिख दिया, फिर कुछ याद आया वो भी लिख दिया. तो दिस इज रॉन्ग. मतलब दिस इज नॉट, यू आर नॉट मेंटेनिंग द फ्लो. ओके, नेक्स्ट, द प्रायोरिटी ऑर्डर. तो दिस टॉपिक आई विल डिस्कस लेटर ऑन, इसी पे आ रहा हूं, इसको अलग से डिस्कस करेंगे. रॉन्ग प्रिजम्पशन, राइट? कि कुछ चीजें आप जो मैंने आपको इनडायरेक्टली बता दिए कि जितना स्पेस है उतना भरना है. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, दे विल काउंट यू नंबर ऑफ वर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप पूरा पेज भर दोगे क्या 20 में 20 मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. सब्जेक्टिव में यूपीएससी 65-60% इज टू मच. तो आप मान लो कि आपने पूरी शिद्दत से लिखा है 20 मार्क्स का, तब भी आपको 14 से ज्यादा मार्क्स नहीं आएगा, राइट? It's too difficult to get 14. Even if you are getting 12, 11, you are good enough. You are competent enough to get into the list, right? तो बहुत ज्यादा लिख करके और आप सोचोगे बहुत ज्यादा मार्क्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं. ये रॉन्ग प्रिजम्पशन है आपकी. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट कि जनरली द पेपर 2 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू दिस कैटेगरीज. दिस इज नॉट इन ऑर्डर, तो मैं आपको बताऊंगा. बट दिस आर 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. द 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन सीएपीएफ एग्जाम, राइट? लास्ट में, पेपर के जनरली लास्ट में आपको ग्रामर टाइप मिलेंगे. पहले तो ऐसे लिखा होता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन ऑर्डर बिकॉज़ मैंने इसको जानबूझ के ऐसे लिखा है, राइट? तो ग्रामर टाइप क्वेश्चन होता है, जैसे उसमें होगा वॉइस चेंज करना, नैरेशन चेंज करना, प्रोनाउन सेट करना, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. सो दिस थिंग्स एक ऑफिस कम्युनिकेशन में यूज होती है, और आप वैसे भी सीडीएस वगैरह की तैयारी करते हो तो आई थिंक ग्रामेटिकली यू आर गुड इनफ, क्योंकि उसका ग्रामर थोड़ा इजी होता है.
CAPF वाला। तो दिस इज द सेक्शन वेयर द वेटेज इज अराउंड on an average as per the trends 25 minutes. Now this section is one of the section where 100% marks is possible because one liner होते हैं, तो अगर आपने सही लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो you should try to attempt all the question. Now subjective में नेगेटिव है नहीं, तो अपने को attempt करना है, ठीक है? attempt करो, राइट? try to do as much correct as you can. मतलब आपको कोई रूल नहीं पता तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बट खाली नहीं छोड़ना, ओके? बट ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं पता होगा, कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर आएगा, आप जरूर लिखो, राइट? इट विल टेक हार्डली 15 मिनट बिकॉज जो लाइन भी होता है ना काम, वो 6-7 वर्ड का लाइन होता है, तो हार्डली 1 मिनट लगता है क्वेश्चन पे। समटाइम्स यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो आपको टाइम बच जाएगा। सो दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन सेव टाइम as well as the efficiency, or you can say that output ratio will be good. Input is to output. आप इस सेक्शन पे अगर 15 मिनट लगाओगे लिखने में, राइट, तो ये 25 मार्क्स आपका कवर होगा। एंड आइडियली मान लो 3-4 गलत हो गया, कुछ आपके डाउट्स वाले थे वो भी गलत हो गए, you will be able to score 17 to 18. This is one of the good score, right? So now मैंने इसको पहले क्यों लिखा? Because I want as an average student, आपको अगर डर लगता है, प्रॉब्लम्स हैं, स्पीड आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, आप ग्रामर सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर लो। जो आपके पास बुकलेट आएगी उसमें सीधे पलटो, पीछे ग्रामर वाले अटेम्प्ट कर लो। तो पहले 15-20 मिनट में आपने अपना स्कोर 15 के ऑन एवरेज मार्क्स कर लिया है, राइट? दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, ओके? सेकेंड पार्ट आप क्या करो, पीछे से एक पैसेज वाले आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है आपको, क्वेश्चंस होते हैं 5, आपको उसके आंसर देने होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल नहीं होता, फिलोसफिकल नहीं होता, सोशियोलॉजिकल नहीं होता, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कॉम्प्रिहेंशन ना समझ में आए, मतलब ये क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ लिखोगे ना। जब लिखने की कोशिश करो तो ट्राई टू मेंटेन द फ्लो। दूसरी चीज, पैसेज में बहुत लंबा लाइन भी नहीं लिखना है, राइट? जो आप कहते हैं नॉवेल टाइप का नहीं लिखना। डोंट ट्राई टू यूज मेटाफर, बहुत ज्यादा नहीं घुसाना है, ऐसा स्लैंग्स नहीं यूज करना, प्रोवर्ब नहीं यूज करना। कम्युनिकेशन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की। आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ लेक्चर, मैं वहां पे पोएट्री करने नहीं गया हूं, राइट? पोएट्री में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स अलाउड होते हैं, देयर इज नो रूल इन पोएट्री, बट यहां पे रूल्स हैं, right? So it should be straightforward, it should be lucid, it should be understandable, it should be absorptive in nature, okay? तो ये आप सारा क्वेश्चन करोगे। लेट्स सपोज आपके पास 5x4 का क्वेश्चन है, लेट्स सपोज 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, तो आपने क्या किया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपको पूरे मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। अज्यूमिंग दैट यू हैव अटेम्प्टेड इट करेक्ट, 50% एक्यूरेसी तो होगा ना, और अगर आपने सारा किया तो 60%। तो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस, मतलब 12-13, मान लो आपके 10 मार्क्स आए, इसमें मैंने आपको कहा कि आप 15 लेके आए, मतलब यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, आप पहली बार दे रहे हो, मान के चलो, बट ऑफ कोर्स आप अच्छा करोगे इससे। तो व्हाटएवर आई एम राइटिंग इन दिस साइडवेज इज एक्चुअली द वर्स्ट केस, कि बेकार से बेकार केस में कितने मार्क्स आएंगे। नाउ ये बीच वाले मैंने लिखा है कि आइडियल टाइम कितना लगेगा। आई ट्राइड टू सॉल्व दिस पेपर, राइट? मैं आम आदमी की तरह मैंने लिखने की कोशिश की। आई ट्राइड टू फाइंड कि रोड के पैसेज पढ़ने से 20 से 22 मिनट में आप ये कर लेते हो, बिकॉज बार बार आपको पैसेज नहीं पढ़ना होता, पैसेज पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगता है, आप वहां पे अंडरलाइन करते जाते हो कि ये की पॉइंट है, फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप करते हो। नेक्स्ट, दूसरी चीज पैसेज में, नाउ एक चीज और, जैसे आप उसने लिखा कि चलो 5 मार्क्स का है, आपके पास स्पेस नीचे होता है लगभग, वो मान लो कि आधा पेज 1 पेज का स्पेस होता है, उसमें क्या है, पूरा नहीं भरना। आई अगेन से कि 1 मार्क्स के लिए 2 लाइन लिखो, ओके? 1 मार्क्स के लिए 2 लाइन लिखना है अपने को। Don't try to make it too lengthy because it will take your time. Time ही तो बचाना है। The first and foremost agenda of the paper 2 is attempt all the question, right? The second agenda is write at least 95% of the answer. मतलब अगर मान लो मेरा एजेंडा है कि 300 वर्ड में लिखना है, तो मैं 260-240 वर्ड कम से कम हर ऐसे का लिखूं, हर कॉम्प्रिहेंशन में जितने वर्ड्स मेंशन्ड है उसका 90% लिखूं, ओके? 300 मत 90% में 260-270, ऑलराइट? ये एजेंडा है। एक को बहुत बेहतर करने में टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज मार्क्स का फर्क हाफ से 1 का पड़ेगा, 1 मार्क्स से आधा नंबर का, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट उतना नहीं करना अपने को, ओके? नेक्स्ट, आर्गुमेंट टू एंड, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट वाला। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल सेक्शन एक्चुअली। इसमें क्या है कि आप अगर आर्गुमेंट स्टैंड ले रहे हो तो स्ट्रिक्टली उसके स्टैंड में लेना, उसमें फिर ऑल दो मत यूज करना, राइट? अगेंस्ट वाले में यू हैव टू टेक वन, जैसे लॉयर्स वाला होता है ना कि आपने वो काउंटर करना है। काउंटर मतलब जो ऊपर लिखा है पूरे विरोध नहीं करना, ओके? व्हाट कैन बी द पॉसिबल, ओके?
आप मेरी बात समझ रहे हो, बट ऑफ कोर्स इसमें आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 सैंपल देखना पड़ेगा। तो पहले ऐसे क्वेश्चन ना क्लैट एग्जाम में आते थे। क्लैट पहले होता नहीं था, नेशनल एनएलएसआईयू एग्जाम था बैंगलोर का, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं एनएलएसआईयू में, एंट्रेंस एग्जाम में ये पहले आते थे। ओके, यू कैन फाइंड इट इन प्रीवियस पेपर्स ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स एज वेल। ऑलराइट, नाउ सो इट विल टेक, ये जो आपका सेक्शन है, दो आपको आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट में लिखना हो, तो लेट अस सपोज कि आपने 5-5 मिनट लगाया, फॉर 5 अगेंस्ट 5, फिर से फॉर 5 अगेंस्ट 5, 20 मिनट्स। ओके, नाउ एक चीज इसमें ये करना कि आप एब्रप्टली मत लिखना। जैसे टॉपिक देखा ना, तो पीछे कॉपी के रफ स्पेस होता है, आप लिख लो पॉइंट, लाइन नहीं पॉइंट, फॉर में व्हाट आर फेवरेबल, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस टाइप से 4 पॉइंट लिखो, ताकि आपको पता रहे कि इसके बाद ये लिखना है। अदरवाइज एब्रप्टली लिखने में वो बड़ा सा हो जाएगा और फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, राइट। भावनाओं में नहीं बहना है, मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। ओके, so it will take 25 minutes, and if you are able to attempt this, of course you should attempt, कम लिखो but सब attempt करो, right। Your score will be around 20 to 22, let us suppose you are getting 18, the worst case। all right, next report writing। रिपोर्ट राइटिंग आपके पास 2 रिपोर्ट्स होते हैं 10x2 की, ये भी सिंपल होता है, इट्स लाइक डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट करना कि कहीं मैसेज भेजना है। सो इट विल हार्डली टेक 20, इन फैक्ट सम ऑफ पीपल विल बी एबल टू कंप्लीट दिस विद इन 15-16 मिनट्स, बहुत होता है 15 मिनट, बिकॉज स्टार्ट करना टफ होता है, एक बार जब लिखना शुरू करते हो तो टाइम नहीं लगता। दूसरी चीज अगेन आई से, रफ में आप कंटेंट लिख लिया करो कि इसमें क्या लिखना है, वो जरूरी, 1 मिनट लगाओ या 2 मिनट लगाओ, वो रफ में आप उस टॉपिक का कंटेंट लिखो डॉटेड में कि ये लिखना है मुझे, नहीं तो फ्लो बेकार हो जाएगा और पढ़ने वाले को लगेगा कि नहीं किसी तरह स्पेस बढ़ा गया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बहुत जरूरी है। ओके, रिपोर्ट राइटिंग में नाउ आइडियली यू विल गेट 8 to 12, तो लेट अस सपोज ऑन एन एवरेज यू आर गेटिंग 10 में आपको 5 मार्क्स मिल जाए, मतलब आप ठीक हो। जो बिलो एवरेज होते हैं उनको 3-4 इस टाइप से मिलते हैं। नेक्स्ट और बहुत बड़ी चीज एक्चुअली ना, एक चीज आपने ऑब्जर्व किया, मैंने टॉपिक्स को सीरियल ऑर्डर में नहीं लिखा और यहाँ मैंने एरो लगा रखा है, दैट मींस व्हाट आई सजेस्ट यू, दिस शुड बी योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। पहले ग्रामर क्वेश्चन करना है, फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला, फिर आर्गुमेंट, फिर रिपोर्ट राइटिंग। अब प्रेसेस और ऐसे में आप एक्सचेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, बट आई विल सजेस्ट कि ऐसे वाला करो, बिकॉज 80 मार्क्स का है, तो होता क्या है कि बाय चांस आपको यहाँ तक काफी टाइम लग गया, जो मैंने आपको आइडियल टाइम बोला है कितना लगता है, हो सकता है आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो कुछ एक्सीड कर गए तो आपका क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए अपन ये कर लेंगे। बट वन अगेन थिंग आई विल राइट टू रिमाइंड यू दैट डोंट ट्राई टू फिल द कंप्लीट एसे ऑफ एसे, राइट। एक लाइन में आप मैक्सिमम 5 से 6 वर्ड लिख पाओगे वहां जो कॉपी होगी। ओके, आइडियली आपको 3 लाइन पे 1 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा आइडियली, ओके, बिकॉज 4 ऐसे लिखने होते हैं तो 20 मार्क्स के 1 हो गया आपका, तो आइडियली 3 मार्क्स का 1 होगा, राइट। तो योर आंसर शुड बी एट द मैक्स 240, 250 और 260 वर्ड्स। ओके, मतलब कि आप ये मान के चलो कि 40 से 50 लाइन के बीच में अपने को खत्म कर देना, 40 से 45। दूसरा, जो आप रफ एसे के लिए टॉपिक का रफ कंटेंट लिखोगे, मैंने मान लो टॉपिक के रफ कंटेंट साइड में लिखा, तो अपना एजेंडा ये है, सोच के ये चलना है कि अपने को 40 लाइन लिखना है। जब तुम 40 सोचोगे ना तो वो 5-6 बढ़ जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ जो आप इंग्लिश लिखोगे, एज वी नो दैट फलान एज वी सॉ दैट इन द रिसेंट आउटब्रेक, जो फालतू के वर्ड्स होते हैं ना, तो इनको कम लगाना है, बट ह्यूमन नेचर है, आपको लगेगा ही, अदरवाइज सेंटेंस फॉर्म करना मुश्किल होगा। इट विल टेक योर एक्स्ट्रा 5 लाइंस। ओके, राइट, ऐसे का रफ करके जरूर करना, ये मिस्टेक लोग करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ कॉपी चेक की है तो उसमें मुझे ये चीज दिखता है कि इतना पैथेटिक आंसर दिखता है। यू कैन से दैट कि सम जो जैसे कुछ बच्चे आंसर लिख करके मॉडल चेक करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए भेजा, मैंने प्रिंट लेकर के उसको चेक किया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू से दैट कि हाउ मच मार्क्स अकॉर्डिंग टू यूपीएससी शुड बी देयर। ऑन माय एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स यूपीएससी इज द बिग वन, तो आई विल से कि उसमें मैं 3 से 4 नंबर ना दूं, इतने बेकार आंसर होते हैं, राइट। तो आपको सुधारने की जरूरत है, सेंटेंस शुड नॉट बी टू लॉन्ग, सेंटेंस शुड नॉट बी टू शॉर्ट, राइट। शॉर्ट के चक्कर में कॉमा, फुल स्टॉप ये सब जबरदस्ती नहीं लगाना, दैट इज द कॉमन मिस्टेक, राइट। इट विल टेक योर अराउंड 1 आवर, ये आपको चारों ऐसे लिखने में 1 आवर लगेगा, इनफैक्ट 10-15 मिनट ज्यादा भी लग सकता है, बट मैं पहले भी कह रहा हूं 250 शुड बी योर टारगेट नंबर ऑफ वर्ड्स, राइट। अगर टाइम बचेगा तो देख लेंगे, नहीं तो 250 इज इनफ। 20 में आप 250 वर्ड के ठीक ठाक आंसर लिखते हो तो 20 में आपको 11-12 नंबर जरूर मिल जाएंगे,
और वही आपका एजेंडा होना चाहिए। 14 से ज्यादा तो मिलना नहीं है। ओके, तो 2 नंबर के लिए इतना मारामारी नहीं करना, अपन 2 नंबर की मेहनत पेपर 1 में कर लेंगे। पेपर 1 में अपने को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और यहाँ पे क्या है कि जो टॉपर होता है उसके भी जो मार्क्स होंगे और एवरेज वाले के मार्क्स 20 से 30 नंबर का फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो सकता। वो 25-30 नंबर है। दूसरे पेपर 1 के बहुत सारे सेक्शन है जहां पे कि विदिन 1 मिनट हम 2-3 नंबर की बराबरी कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें हमारा आइडियल स्कोर जो आउट ऑफ 80 आई एम टेकिंग 34 to 45, सो लेट अस सपोज यू गॉट अराउंड 40। ओके, आपने सारा ऐसे अटेम्प्ट किया, कुछ पॉइंट्स लिखे, बुलेट्स पॉइंट्स के साथ लिखे, कंटेंट भी है, बिकॉज टॉपिक टफ नहीं है, तो अगर आप पढ़ रहे होगे तो आप ना उसके माइंड मैप्स बना के रख सकते हो कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट आएगा, जैसे योजना के इश्यूज हैं, योजना वाले में एक लीड आर्टिकल होता है योजना मैगजीन में, आप उसके ना लीड पॉइंट्स मतलब पॉइंट डॉटेड डॉटेड करके लिख लो माइंड मैप के थ्रू। आपको एक आध हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे ऐसे मिल जाएगा, या नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप करना, वो भेज देंगे एक आध बुलेट्स पॉइंट्स टाइप। तो उससे ना खुद से बनाओ, उससे क्या होगा कि लिखते टाइम आपको ध्यान में रहेगा, एंड एज यू गेट दैट टॉपिक इन एग्जाम इट विल स्ट्राइक योर माइंड, ये पॉइंट्स है, शायद 10 पढ़ोगे तो 3 पॉइंट तो याद रहेगा ना, तो भी काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रेसिज राइटिंग, इसमें क्या है कि एक बॉक्स सा देते हो, उसी में आपको भरना होता है कि 1 to 5 वर्ड लाइन का इसमें रखना है, फिर 5 to 6 ना, मोर और लेस इट लाइक प्रेसिज मतलब कॉन्साइज करना, समरी करना, जो जरूरत की चीजें हैं उतने में ही लाइन अपने को रखना है और कुछ नहीं लिखना। तो we'll have a separate session on this. Okay, मैं इसमें अभी नहीं जाना चाहूंगा डेप्थ में। It's around 15 marks. तो ideally it will take 20 marks and it is very easy to get 8 to 9 marks because वो section wise marks होते हैं, इस लाइन से इस लाइन तक। तो आपको हर पैरा का पहले 5 लाइन के जो भी मार्क्स होंगे, लेट्स सपोज कि पहले 5 लाइन के जो है आपके पास लेट्स अज्यूम कि 1.5 मार्क्स हैं, तो आपने लिखा होगा तो मे बी आपको 0.5 मिल जाए इस टाइप से। ओके, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको 0 मिलेगा, 0 तो वैसे नहीं मिल सकता इसमें, तो एट द मिनिमम यू विल बी गेटिंग 6 to 7। अच्छा खासा लिखोगे एवरेज तो 8-9 तो आ ही जाएगा, राइट। तो लेट अस सपोज कि आपने इसको ऑन द एवरेज काउंटिंग के लिए मैं 10 ले रहा हूं। ओके, ऑल्दो 10 इज टू मच, आप काट लेना टोटल में से। नाउ जो मैंने टाइम अलॉट किया इट्स अराउंड 100, यू नो, अगर आप काउंट करोगे तो 120-30 के आसपास हो रहा है, थोड़ा सा 160 वाट के आसपास होगा। तो 10-15 मिनट जो है वो मैंने लास्ट में रखा है, लास्ट इन द सेंस कि जैसे आप ऐसे के लिए कुछ सोचोगे तो 3-4 मिनट लगेगा, इनफैक्ट 10 मिनट भी लगेगा, प्रेसेस के लिए सोचोगे तो भी टाइम लगेगा। तो इनफैक्ट इस 3 घंटे में 180 मिनट में 20 से 25 मिनट तो सिर्फ सोचने का लगेगा। तो आइडियली लिखने का टाइम आपके पास 150 मिनट ही है, ये बात आप हमेशा याद लेके चलो। अगर आप इसको ऐड करो तो इट्स अराउंड 15, 10, 25 एंड अप्रॉक्सीमेटली 38, 25 एंड 18, तो 43, 53, 53, 40, 93 and even if you take 10 तो this is 103। मतलब अगर आप इस पूरे को समरी करोगे your score will be coming as around 103, प्लस माइनस कर लो, at the worst case you will be getting 95, right? So 95 is not a bad score if you are scoring 110 or 105 or 125, मतलब let us take the cutoff for the paper 1 is 125 and you are scoring around 125 at the boundary case, so even if you are scoring 90 that is good enough to clear, right? So 50% अच्छा स्कोर होता है, 200 में अगर आप 100 लाते हो, 95 लाते हो, you have done efficiently good, don't worry about this, you will definitely be in the merit list। So this is the priority order from grammar to precis, right? और ये आप दिमाग में पहले से बिठा के जाना, मतलब this is just a suggestion, अपना अपना होता है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप पहले ऐसे लिखो, बट 10 में से 9 स्टूडेंट जो पहले ऐसे लिखते हैं उनके पास लास्ट में टाइम कम रहता है और वो प्रेसिस में कुछ भी लिख के चले आते हैं, बिकॉज वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। प्रेसिस में क्या है कि जैसे आप अपने से assumption नहीं कर सकते, यू कैन नॉट assume, ओके, यू कैन नॉट यूज योर कंक्लूजन इन द प्रेसिस, जो लिखा है वही करना है, डॉक्यूमेंटेशन, समरी। तो कुछ क्वालिटी होती है, कुछ इसके रूल्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए, विल कम अप विद दैट इन डिफरेंट सेशन। This is the order and this is the ideal time and this is the tentative score even if you are an average student, and this is how which we feel that a candidate will be able to counter these problems, these 5 problems which I discussed, and will be definitely able to score 50% in paper 2. Not a big deal, right? So as we got the request from the serious aspirants who are appearing for CAPF to sir what should be done for paper 2, right? So we are trying, I'm not sure, but we are trying to come up with paper 2, you can say test series or mentorship plan
राइट, कि पेपर 2 में प्रेसिस कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, मॉडल ऐसे, यू विल सेंड द कॉपी, विल चेक इट आउट, मतलब इवैल्यूएट करके हम भेजेंगे, बट उसके बारे में विल मेक सेपरेट अनाउंसमेंट फॉर दैट। इस डिस्कशन में if you have any doubts, any queries, any suggestion, any remarks, do write us at 7710548960, or you can email us as well, right? So this is from DCA right now for the paper 2. Thank you for the session. Hope it will be helpful in your preparation. Thanks.